السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی آج 2 محرم ہے اور 1 محرم کو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج میں جس حوالہ سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کا بڑے یہ سوال جواب ہوتے ہیں، تو چلیے ناظرین، میں کہتا ہوں پہلے ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، بالکل غلط ہے۔ جہاں تک کہ یزید کی رائے ہے، مسلمان علماء میں اور مسلم عام میں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قرض کرنا چاہیے، لعنت بھیجنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحیم اللہ کہنا چاہیے میں اللہ، اور یہ کہے کہ کوئی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے امام غزالی کو پوچھا گیا تھا کیا ہم یہ دعا کر سکتے گا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں۔ جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے، انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے، یعنی رحیم اللہ کہنا ان کو دعا دینا بہتر ہے، اور یہ لکھا ہے قائد شریعت بن اکبر یزید، پیج نمبر 57-59۔ اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، اور جب ہم دعا کرتے اللہم اغفر لی مسلمان مسلمات، تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں، اور یہ میں دعا کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اور جب آپ پڑھتے صحیح بخاری میں پڑھیں گے، صحیح بخاری کا نمبر 4 ہے، بک نمبر جہاد، حدیث نمبر 2924 میں لکھا ہے شخص جنگ قسطنطنیپل میں حصہ لے گا، اللہ کے رسول نے اشارت دی کہ وہ جنت جائیں گے۔ اور اگر آپ شرح میں پڑھیں گے حافظ ابن عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ یزید تھے کہ کمانڈر، تو صحیح بخاری کے حساب سے یزید رسول نے بشارت دی ہے جنت کی، تو جو شخص کو جنت کی بشارت دی ہمارے رسول نے، ان کے اوپر لعنت بھیجنا غلط ہے۔ جی، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر امریکہ کو آتنکت کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح اور پھر ہر کو آتنکوادی ہونا چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، میں نے کہا کہ آتنکوادی وہ شخص ہے، دہشت گرد وہ شخص ہے جو کہ اس کے دل میں دہشت پیدا، مثال کے طور پہ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو پولیس اس چور کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے، تو جو بھی انسان اسلام میں دشمن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے تو وہ صحیح انسان ہے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ ذاکر صاحب، ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ذاکر نائک کی اسامہ بن لادن کو لے کر جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کی بات کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی مفتی صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر مشتمل ہے، اور قرآن و حدیث جو ہے وہ 23 سالہ دور میں ہے۔ کبھی اس میں جاڑا آیا ہے، کبھی برسات آئی ہے، کبھی حکم ہوا ہے کہ کدو کھاؤ، کبھی یہ منع کیا گیا ہے کدو نہیں کھاؤ، کبھی یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، اور کبھی کہا گیا مکے کی طرف نماز پڑھو، اور کبھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کو کعبے کی سمت نہیں معلوم ہو تو تم جس طرف بھی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تم کو وہاں پہ ملے گا۔ تو دیکھیے، اسلام دو ایک کتابوں کو، دو ایک جملوں کو رد لینے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو اچھے موتی ملیں گے۔ انہوں نے 2-4 باتیں رٹ لی ہیں، لیکن امام جی کا بھی رد کیا گیا ہے، اور جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ حدیث کے مطابق ہے، اس حدیث کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ اور غزالی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو لوگ یہ فتویٰ دیں گے کہ امام غزالی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ اگر امام غزالی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں کہ ہم رحیم اللہ کہہ سکتے ہیں یزید کو، میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ مانیے، یہ میری رائے ہے، اور کئی علماء کو رحیم اللہ کہا۔ آپ بات ماننے کیا مانو نہیں ماننا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر تھے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے کیا نہیں؟ میں چاہنا جو لوگ نے فتویٰ کہتے ہیں کہ جو ذاکر نائک کہہ رہا ہے یزید کے اوپر دعا کرتا ہے، رحمتا ہے،
हमें अल्लाह भी इज्म कहता है, वो काफिर है। तो ये सारे ये इमाम गजाली भी काफिर है। आज हमारे पास फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी का फतवा है, हदीस का फतवा कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, आप उनको दुआ कर सकते नहीं भी कर सकते। कई लोग ने कहा दुआ है तो आप फतवा लगाएंगे सारे दारुल उलूम काफिर है। हमें ये जो आप कह रहे थे हज़रत हुसैन के, और जो आप कह रहे थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में गुफ्तारी करना, मैंने ये जो भी असल कातिल है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का, मैं कहता हूँ पर लानत है। मैं ये नहीं जानता हूँ किसने उसका कत्ल किया है, तो जो भी असली कातिल है उसके ऊपर लानत है। मैं बार बार कह चुका हूँ, लेकिन लोग मेरे स्पीच को बीच में से लेके तोड़ते हैं। इसलिए ये देखना चाहिए, सही कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। सवाल ये है कि आप नहीं जाकिर साहब क्यों ना इस बारे में हम अपने संवाददाता कमाल खान यहाँ पे लेकर आए, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। कमाल, अगर आप सुन सकते हैं तो जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि उनके बयानों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर पेश किया गया है। क्या कहेंगे आप कमाल? उनसे पूछना चाहेंगे कुछ। मुसलमानों में बहुत तरह के फिरके हैं, वो अलग अलग चीजों पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे जाकिर साहब नायक साहब मानते हैं कि मज़ारों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। उन्हें भाषणों में कहा भी है कि पैगंबर ने खुद कहा था कि कब्र जो है वो एक तो पक्की नहीं होनी चाहिए और उनको जमीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कई शिया मुसलमान हैं जो नजफ में, करबला में बहुत सारे मज़ार हैं, जाते हैं और ज़ियारत करने जाते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, वहाँ पे बहुत हैं। तो अगर होता यह है कि अगर कोई शिया विद्वान कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में कोई बात कहता है, अपना विश्वास, या कोई सुन्नी देवबंदी विद्वान अपने लोगों के बीच में कहता है, तो बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि जाकिर नायक साहब एक टेलीविजन के ऊपर वो बोलते हैं और वो सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की हाथ में लोग आते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं तो इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के हैं उनमें और भेदभाव पैदा होता है? इन बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कहने के बजाय अगर आपका विश्वास जो है वो अपना विश्वास अपने तक रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये ठीक उसी तरह है कि जैसे खबर जो है, अगर वो लोग कोई चीज अपने मन में कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी के खलीफा के पे कोई चीज कहेंगे तो जरूर वो शायद शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी विवाद पैदा होगा। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो भी मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। ये है, और मैं आम पब्लिक में ऐसे बातें जिसपे तफर्रुक़ा पैदा भी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई अगर मुझसे बात कर लेता है या टीवी पे इंटरव्यू सवाल पूछ लेता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सही जवाब दे, लेकिन मुसलमान में तफर्रुक़ा पैदा करना बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह 3 आयत 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाह तफर्रक़ू, कि आप सब लोग सारे मुसलमान एक साथ हो जाओ और आपस में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, इसलिए जब भी मैं जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से देता हूँ। और कुरान के पास सबसे बेहतरीन किताब हदीस के अल्लाह के रसूल की जो है वो सही बुखारी। तो जो भी मेरा हवाले के साथ बुखारी कहता है, तो मैं ये जो भी मैं राय बोलता हूँ अपनी जाती राय नहीं पेश करता। कभी कुरान का हवाला देता हूँ, अक्सर लोग हवाला नहीं देते। मैं कुरान का नंबर पेश करता हूँ, सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस भी पेश करूंगा तो हदीस नंबर पेश करूंगा। और ये जो राय जो यजीद के बारे में भी, ये भी कई उलमा की राय है। तो ये कहना कि मैं जाती राय बिल्कुल, लोग क्या, क्योंकि कुछ लोग को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है और मेरी इज्जत पे हमला करना है, मेरे स्पीच को तोड़ के आम कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान ये जानता है कि मैं इतने तकरीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में इतने तकरीर किया मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, भी मानना चाहिए, बुद्ध को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूद को भी मानने तकरीर पढ़ो। और मैं कोशिश करता हूँ यकसानियत के लिए, हमेशा मैं कभी भी तफर्रुक नहीं पसंद करता हूँ। और जहाँ तक कि टेररिज्म का सवाल, मैंने इतने तकरीर किए टेररिज्म के खिलाफ, जहाँ तक कि मुझे खुद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ ने, जब लोग ने मुझ पर इल्जाम कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, तो वो अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के, खुद वो लोग को जवाब दिया कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, रेपिस्ट है, क्रिमिनल लोग के लिए दहशत पैदा करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस करती है। तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से और मेरे पे कीचड़ उछाल। तो चलिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ों के बारे में बात करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी की हदीस है। अब कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। और इस हदीस के अंदर आपको मैं एक जुमला भी दूंगा, नुक्ता भी बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज
सहाबा पीछे पढ़ रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे खेल रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा लंबा कर दिया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा फरमाने लगे हमें ऐसे लगा जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात कर ली है। लेकिन एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने ना सर उठाकर देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर खेल रहे हैं। तो मैं मंजर, इतना खूबसूरत मंजर देखते ही रह गया। तो खैर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाकर मेरी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर कह दे इन बच्चों को ना भेजा करें, नहीं, ये नहीं कहा कि मस्जिद नबवी के अंदर भेजा करें, ये भी नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि इनको अपने घर में बैठा के रखा कर, नहीं, ये भी नहीं कहा। और इन हदीस से नुक्ता ये निकलता है अगर हमारी मसाजिद के अंदर भी अगर कोई बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, शोर करते हैं, शरारतें करते हैं, उनको मस्जिद से बाहर नहीं निकालना, उनको डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जैसा ये मुआशरा चल रहा है आजकल का, छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो भी मोबाइल मांग रहे हैं, तो देखे इससे बढ़कर खुश नसीबी क्या हो सकती है कि ये बच्चे अल्लाह के घर में आ रहे हैं और आप उनको घरों से निकाल रहे हैं, अल्लाह के घर से निकाल रहे हैं। तो नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला ये निकलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी ख़राब नहीं हुई, नबी पाक के नमाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे खेल रहे हैं, ना नबी पाक की नमाज ख़राब हुई है ना सहाबा की ख़राब हुई है। यानी इस हदीस से ये पता चलता है ना जैसे नबी पाक की नमाज ख़राब नहीं हुई, सहाबा की ख़राब नहीं हुई, ऐसे नबी पाक की उम्मती की भी नमाज ख़राब नहीं हो सकती। तो चलिए इसी हवाले से एक और हम हदीस देखते हैं, ये सिलसिला सहिह की हदीस है, हदीस नंबर 226 है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के नबी जी मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब क्या आया है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में आ गया। तो फरमाने लगी अल्लाह के नबी मैं बड़ी परेशान हुई, ख्वाब मुझे ये आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के लगे उम्मे फ़ज़ल से, तो ये खुशी वाली बात है, अल्लाह पाक मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेटा देगा और वो आपकी गोद में भी आएगा। तो नबी पाक मुस्कुरा कहने लगे इसमें तो कोई बात नहीं है। तो फिर उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैं ज़रा दूसरी तरफ मेरा तवज्जो हुई, तो मैं फिर आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। तो मैंने पूछा अल्लाह के नबी जी आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला से फरमाने लगे कि ए उम्मे फ़ज़ल ये जो मेरा बेटा है, ये जो नवासा मेरा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इसको मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। और जबरील अलैहिस्सलाम ने वो मुझे खून रेत मट्टी भी ला के दिखाई है, वो मेरे सामने, वो जगह भी मेरे सामने की गई है। तो नाज़रीन इस पे एक ये जुमला निकलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पहले ही बता दिया था कि ये आपका नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया जाएगा। ऐसे ही अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में भी बता दिया था कि जैसा कि नबी पाक ने ओहद पे पहाड़ पे खड़े होकर कहा था उस बुत ओहद ठहर जाओ, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, सहाबा भी अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, हज़रत उमर फ़ारूक भी थे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो नबी पाक ने फरमाया ओहद पहाड़ ठहर जा, क्यों हरकत कर रहा है? तो ओहद पहाड़ रुक गया। नबी पाक ने फरमाया आपको नहीं पता, पहाड़ से नबी पाक मुखातब हो रहे, आपको नहीं पता आपके ऊपर एक अल्लाह का नबी सवार है, दूसरा प्यारा सिद्दीक सवार है और दो शहीद है। वो शहीद कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो नाज़रीन दुआ करिएगा अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसी मोहब्बत करने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।